راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، اگر ہم نے ترقی کرنی ہو یا کسی بھی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معمول کو بہتر کریں، یعنی اپنی روٹین کو بہتر کریں اور جو کچھ اسے کرنے کے لیے درکار ہے، سادہ لفظوں میں ہم اسے اپنے معمول کا حصہ بنائیں تو ہم بڑے اچھے طریقے سے اس کام کو منزل تک پہنچا دیں گے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم جو ہے وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اسکول جاتا ہے، واپس آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر تھوڑا سا کھیلتا ہے، باقی کام کاج کرتا ہے، پھر سو جاتا ہے۔ یعنی اس طرح سے جو پڑھائی کو مناسب وقت دیتا ہے وہ طالب علم پھر بالآخر کامیاب بھی ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں میٹرک کا رزلٹ آیا اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر 12ویں جماعت کا بھی رزلٹ آتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس میں جو طلباء و طالبات کامیاب ہوتے ہیں، در حقیقت ان کی روٹین بڑی کمال ہوتی ہے، وہ اپنے اس معمول سے آگے پیچھے نہیں ہوتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بدلے میں ایسے طالب علم ہیں جو ہوتے تو بہت زیادہ ذہین ہیں لیکن روٹین ٹھیک نہیں ہوتی، ایک دن پڑھ لیا تو پھر ایک ہفتہ بالکل کتابوں کو ہاتھ نہ لگایا، ان کے لیے پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک اور بات شامل کرنا چاہوں گا، جتنے طالب علم میٹرک میں کامیاب ہوئے ہیں وہ اپنے اگلے فیلڈ کا چناؤ بہت دھیان سے کریں۔ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ والدین کا پیسہ اور ہمارا یہ وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، کوشش کریں کہ اس کو صحیح سمت میں لگائیں۔ بہت سارے طالب علم جذباتی فیصلے کر کے ایف ایس سی پری میڈیکل میں چلے جاتے ہیں، بہت سارے ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں چلے جاتے ہیں، جبکہ وہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا، اس سے پھر وہ ناکام ہوتے ہیں اور پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، والدین بھی پریشان ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب کا جو دور ہے وہ بڑا کمال کا دور ہے، تو اپنے فیلڈ کا چناؤ بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر کیجیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عام سوچ جو ہے وہ ہم سب کو ڈراتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ ایف ایس سی نہیں کریں گے تو آپ کا مستقبل اچھا نہیں ہوگا۔ تو جناب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مستقبل خدا کے ہاتھ میں ہے، سرفرازی اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کسی سادہ سے سبجیکٹ میں بھی ماسٹرز ہو جائیں گے تو آپ کو سرفرازی مل جائے گی۔ بڑی دفعہ یوں دیکھا گیا ہے کہ جنہوں نے آرٹس سبجیکٹس پڑھے انہوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی، روپیہ پیسہ کما لیا، معاشرے میں نامور بھی ہوئے، اور جنہوں نے سائنس سبجیکٹ پڑھے ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو زندگی میں کامیاب نہ ہو پائے۔ لہٰذا اس کام کو خدا پر چھوڑ دیجئے، آپ بس اپنی طبیعت کو دیکھیے، اپنے مالی حالات کو دیکھیے اور اس کے مطابق ایک اچھے فیلڈ کا چناؤ کیجیے۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، سنیں گے تلاوت کلام پاک۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ ابھی میں شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔
ज़ीशान सैफ अल मुलूक साहिब का मैसेज आया है। जनाब का ताल्लुक है आवाज रेडियो लिसनर्स क्लब साहिवाल से। लिखते हैं, सलाम PCRM टीम, आज का प्रोग्राम आदिल मुश्ताक और मिस शिजरा ईमान साहिबा की आवाज में सुना। हमें हर मौसम का लुत्फ उठाना चाहिए। हमारे पास साल में 12 मौसम है, यानी हर महीने का अलग मौसम है। हमें हर हालत में खुदावंद का शुक्रगुजार होना चाहिए ताकि हम और भी बरकत हासिल कर सकें। तिलावत कलाम मुकद्दस से बरकत पाई और हमदिया गीत से रूह को ताजगी हुई। सिलसिला खुतूत भी अच्छा लगा, इसे सुनने में लिसनर्स की दिलचस्पी बढ़ती है। सिलसिला आप बीती भी बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान सैफ अल मुलूक साहिब, आपने हमें टेक्स्ट मैसेज किया। इसी के साथ हैं जी जनाब राशिद कमर साहिब। लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज का प्रोग्राम राह जिंदगी बेहद रूह परवर और सबक आमूज रहा। जिस तरह आपकी टीम हमारे दिलों को नूरे हिदायत से मुनव्वर करती है, आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक दरखशां कड़ी साबित हुआ। प्रोग्राम का आगाज हल्की फुल्की नोक झोंक और दुआया कलेमात से हुआ, जिसने हमेशा की तरह दिलों को गरमाया। गुफ्तगू का बुनियादी पैगाम ये था कि हम चाहे दुनिया की नजरों से ओझल हों, लेकिन अल्लाह की नजर हम पर हमेशा रहती है। ये बात दिलों में उतर गई और हमें अपने रोजमर्रा मुआमलात में दुरुस्ती और खौफे खुदाबंदी इख्तियार करने की तरगीब दिला गई। कलाम मुकद्दस की तिलावत ने तो गोया रूह को ताजगी बख्श दी। नीज ऑस्ट्रेलिया की गुलाबी झील और दीगर दिलचस्प मालूमात ने प्रोग्राम को मजीद रंगीन और मालूमाती बना दिया। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा असर अंगेज लम्हा मेरी आप बीती का था। अपनी ही जुबान में अपनी कहानी सुनकर माजी की यादें ताजा हो गईं और दिल बाग बाग हो गया। ये तजुर्बा वाकई नाकाबिले फरामोश था। आपका ममनून राशिद कमर अज फैसलाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई राशिद कमर। ये थे आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। इसी के साथ जनाब आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। खत लिखकर पोस्ट करने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल या मैसेज के लिए हमारा नंबर है 0316 74 77 655 यानी 0316 74 77 655। इसी तरह से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर भी। PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक ID है और पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा YouTube चैनल है। जनाब इसी के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। सामाईन, इंसान ने जब जमीन पर कचरा, नाकारा अशिया और सनती फुजला फैलाना शुरू किया तो उसे ये एहसास हुआ कि अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो जमीन रहने के काबिल ना रहेगी। तब रिसाइकलिंग का तस्वुर सामने आया, यानी कि पुराने कचरे को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना। लेकिन ये हकीकत बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि कुदरत ने लाखों साल पहले ही जमीन के माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने के लिए एक मुकम्मल, खामोश और इंतहाई मौसर इंतजाम तरतीब दिया हुआ है। ये निजाम 2 खामोश खिदमत गुजारों पर मुश्तमिल है जो कि दीमक और गिद्ध हैं। सामाईन, जंगलात में हर साल लाखों दरख्त गिरते, खुश्क होते या बीमार होकर मर जाते हैं। अगर ये सारा मलबा यूं ही जमीन पर पड़ा रहे तो ना सिर्फ जमीन बेकार हो जाए बल्कि नए पौधों के उगने की जगह भी बाकी ना रहे। ऐसे में दीमक इन मुर्दा दरख्तों, सूखी टहनियों और खुश्क लकड़ी को चबा चबा कर छोटे छोटे ज़रात में तब्दील कर देते हैं और ये ज़रात मिट्टी में शामिल होकर इसमें नामियाती मादों और न्यूट्रिएंट्स का इजाफा करते हैं, जिससे जमीन जरखेज होती है और नई फसलों के उगने में मदद मिलती है। सामाईन, दीमक को अमूमन लकड़ी खराब करने वाला कीड़ा समझा जाता है, लेकिन ये महज आधी हकीकत है। असल हकीकत ये है कि दीमक जिंदा लकड़ी को नहीं खाती बल्कि सिर्फ मुर्दा, सूखी और बीमार लकड़ी को अपनी खुराक बनाती है। सामाईन, दीमक जमीन के कार्बन साइकिल में भी अहम किरदार अदा करती है। जब वो लकड़ी को हजम करते हैं तो कार्बन के मुरक्कबात को जमीन और फजा के दरमियान मुतवाजन रखते हैं। यही वजह है कि जिन इलाकों में दीमक की तादाद सेहतमंद सतह पर हो वहाँ की जमीन ज्यादा जरखेज
और कुदरती तौर पर मुतवाजिन होती है। सामाईन, दीमक ना सिर्फ मुर्दा चीजों को ठिकाने लगाते हैं बल्कि दीगर कीड़ों और परिंदों के लिए खुराक का जरिया भी बनते हैं। बहुत से परिंदे और कुछ छिपकलियां अपनी खुराक के लिए दीमक पर इन्हिसार करते हैं। इसके अलावा ये जमीन में सुरंगें बनाकर मिट्टी को नरम करते हैं, जिससे बारिश का पानी बेहतर तरीके से जज्ब होता है और जमीन की साख्त में बेहतरी आती है। सामाईन, दीमक के साथ साथ इस जमीन पर दूसरा खामोश खिदमत गुजार गिद्ध है, जिसे आमतौर पर नफरत की निगाह से देखा जाता है और नहुसत की इलामत समझा जाता है। इसकी शक्ल, आवाज और मुर्दार खाने की आदत इसे दीगर परिंदों से मुख्तलिफ बनाती है। गिद्ध एक बड़ा परिंदा है जिसके परों का फैलाव 3 मीटर तक होता है। इसका चेहरा अमूमन बेपर होता है ताकि वो सफाई के अमल के दौरान गंदगी से बच सके। इसकी तेज नजर इसे मीलों दूर से मुर्दार देखने में मदद देती है। गिद्ध शिकार नहीं करता बल्कि सिर्फ मुर्दार खाता है, यानी वो जानवर जो पहले ही से मर चुके होते हैं। तसव्वुर करें कि अगर कोई गाय, भैंस, घोड़ा या गधा मर जाए और वो लाश कई दिनों तक खुले मैदान में पड़ी रहे तो क्या होगा? बदबू और बीमारी फैलेगी, माहौल ताफुन ज़दा हो जाएगा। लेकिन हैरत की बात ये है कि वो लाश चंद दिनों में गायब हो जाती है और ऐसा गिद्ध की वजह से होता है। गिद्ध 30 मिनट से लेकर 1 घंटे में लाश को मुकम्मल तौर पर खा जाता है और हड्डियों और खाल के सिवा कुछ बाकी नहीं छोड़ता। ये सब कुछ निहायत तेजी, खामोशी और मुकम्मल सफाई से होता है। सामाईन, पाकिस्तान, भारत और कई दीगर ममालिक में गिद्धों की तादाद में खतरनाक हद तक कमी वाक़ई हुई है, जिसकी बड़ी वजह ये है कि जानवरों को अद्वियात दी जाती हैं जो कि उनके मरने के बाद भी उनके जिस्म में मौजूद होती हैं, और जब गिद्ध उनकी लाशों को खाता है तो वही अद्वियात गिद्ध के जिस्म में दाखिल हो जाती हैं और जहर बन जाती हैं, जिसकी वजह से मुर्दार जमीन पर पड़े रहते हैं। गंध और बीमारियों में इजाफा हुआ है। आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ी है जो गिद्ध ना होने से फायदा उठाते हैं और मुर्दार को खाते हैं। इसके साथ साथ इन कुत्तों ने इंसानों पर भी हमले किए हैं, जिससे रेबीज जैसी बीमारियां फैली। इंसानों की मौत के बाद तो उनको दफन कर दिया जाता है, लेकिन दीगर जानदार जो मर जाते हैं, अगर गिद्ध मौजूद ना हो तो उनके गलने सड़ने के लिए एक लंबा अरसा दरकार होगा। फजाई आलूदगी और बीमारियों में भी इजाफा होगा। लेकिन ये खुदा का अजीम इंतजाम है कि जानवरों की लाशों के लिए उसने जानवरों ही को मुकर्रर कर रखा है, जो कि चंद मिनटों में माहौल को साफ भी करते हैं और फिर उसी से अपनी खुराक भी हासिल करते हैं। इसके ताल्लुक से कलाम खुदा में लिखा है कि जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध भी जमा हो जाएंगे। ये खुदा ताला का कायम करदा अजीम इंतजाम है जो इंसानों और उनके माहौल के लिए खुदा ताला की फिक्र को जाहिर करता है और उसके साथ साथ उसकी हिकमत की भी आकासी करता है। खुदा ताला ने जमीन की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ऐसा बेहतरीन इंतजाम किया है कि उसके लिए हम जितना भी उसका शुक्र अदा करें कम है। सुन रहे थे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। उम्मीद है कि ये मालूमात आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी। अपने फील्ड का चुनाव बड़े ध्यान से कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो कोई माहिर हो उससे मशवरा जरूर कर लीजिए। फिर से ये कहना चाहूंगा कि जज्बाती फैसला मत कीजिए। इसी के साथ साथ जब आप इदारे का इंतखाब करते हैं तो उस हवाले से भी आप दूर अंदेशी से काम लीजिए। बहुत से आपके दोस्त अहबाब हैं जो बहुत ही किसी महंगे इदारे में चले गए हैं। आपने कभी भी उनकी तरफ देखकर तो अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना। याद रखिए, जब आप FA, FSC या कोई भी इंटरमीडिएट की सनद हासिल करेंगे तो वो बोर्ड की तरफ से होगी, जो भी आपके जिले का बोर्ड है। तो आप जितने मर्जी बड़े इदारे में तालीम हासिल कर लें, जितने मर्जी महंगे स्कूल में पढ़ लें, आपको जो सनद लेनी है वो आपको बोर्ड की लेनी है। ये बात याद रखिएगा। और वैल्यू आपके नंबरों की होगी, वैल्यू आपके इल्म की होगी जो आपने हासिल किया है।
इस बात को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, सुनते हैं सिलसिला यूथ टॉक। जी प्यारे सामाइन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और कुछ नौजवान तो इस वक्त छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे और छुट्टियों में वक्त खूब अच्छा गुजर रहा होगा। लेकिन गर्मी बहुत है, इसके बावजूद गर्मियों की छुट्टियों में हम सब बहुत एंजॉय करते हैं और जब हम वक्त गुजारते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने खानदान के लोगों के साथ, तो वहां पर जहां बहुत अच्छी बातें होती हैं, बाज़ औक़ात कुछ बातों पर रंजिशें भी हो जाती हैं, दोस्तों में दूरी भी आ जाती है और उनकी वजह होती है ना माफ करना। हमने इस टॉपिक को पिछले 2 एपिसोड्स में भी कवर किया, लेकिन हमने ये देखा कि इस पर मजीद बातचीत की जा सकती है ताकि हम कुछ ऐसा रिजॉल्व करें कि हम अपने दिल को इस बात पर कायल करें कि हमें माफ करना चाहिए। आज भी हमारे साथ मौजूद है निम्रा और फायका। आज फिर हम इनके साथ मिलकर इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि माफ करने से किस तरह से खुदावंद ताला बरकत देता है। तो निम्रा, आप इस पर किस तरह से रोशनी डालना चाहेंगी? जी, हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे मज़ाहब पाए जाते हैं और हर मज़हब में जो है वो माफ़ी की तलकीन की गई है। और हम ये भी देखते हैं कि किस तरह हज़रत यूसुफ ने जो है उनके भाइयों ने उनको कुछ पैसों की इव्स जो है वो बेच दिया था, लेकिन हज़रत यूसुफ ने जब उनके भाइयों पर मुश्किल हालात थे और वो तकलीफ़ में थे तो किस तरह से उनकी मदद की और उनको कहत साली में अनाज फ्राहम करने में जो है वो पूरा उनका साथ दिया। और ये देखकर उनके जो भाई थे उनकी ज़िंदगियों पर बहुत बड़ा असर पड़ा और बहुत तब्दीली आई। आपने बहुत अच्छी बात की कि हज़रत यूसुफ के साथ तो उसके भाइयों ने अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन उसने ना सिर्फ अपने भाइयों को माफ़ किया बल्कि उनके साथ अच्छा बर्ताव भी किया, उनको खुराक मुहैया की, उनके साथ मोहब्बत दिखाई, उनके साथ शफकत से पेश आए। तो इससे भी हमें ये दर्स मिलता है, हमें ये सबक मिलता है कि जब हमें कोई हर्ट करता है या हमें कोई तकलीफ पहुंचाता है तो हमें सिर्फ ना उसको माफ करना है बल्कि उसके साथ एक अच्छा ताल्लुक भी इस्तवार करना है। और यहाँ पे मैं आपकी तवज्जो एक बड़ी खूबसूरत बात की तरफ दिलवाना चाहता हूँ, वो ये कि हज़रत यूसुफ का यहाँ पे जो रवैया है वो बहुत ही ज़्यादा मुस्बत है और उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने भाइयों को ये कहकर हौसला दिया, दिलासा दिया और तसल्ली दी कि इसमें भी खुदा ताला की मर्जी थी और उसने अपनी मुसीबत में, अपनी मुश्किल में और जो भी उसके साथ जुल्मों से तुम उन्होंने रवा रखे उसमें उसने कहा कि आफियत थी। अगर तुम मेरे साथ बदसलूकी ना करते और मैं अपना वतन छोड़कर यहाँ पे ना आता तो हम सब भूख के मारे मर जाते, लेकिन तुमने मेरे साथ बदसलूकी की और बुराई में से भलाई खुदावंद ताला निकालते हैं। उन्होंने बुराई की लेकिन उसमें से भलाई निकली। सो वो अपनी तवज्जो इंसानी रवैयों की तरफ नहीं झुका रहा बल्कि वो अपनी तवज्जो को खुदावंद ताला की मर्जी की तरफ झुका रहा है कि उसने जो किया वो अच्छा हुआ, भला हुआ। सो निम्रा, मेरा ये ख्याल है कि जब हमारे साथ कोई शख्स कोई बुरा रवैया रखता है तो हम बहुत कुछ सीख भी जाते हैं और हम तरक्की करते हैं, हमें चैलेंज मिल जाता है। सो हमें ये सोचकर भी माफ कर देना चाहिए कि अगर ये शख्स मुझे जरर ना पहुंचाता या मुझे हर्ट ना करता तो मैं शायद तरक्की नहीं कर सकता था। बिल्कुल। और मैंने तो पर्सनली भी लाइफ में ये देखा है कि जब आपका किसी के साथ जो है वो इस तरह का एक्सपीरियंस होता है और माफ़ी की बात आती है, कई दफ़ा खुदा आपको उस शख्स के सामने भी ला कर खड़ा कर सकता है, जैसे किसी जॉब प्लेस पे या घर पे, तो फिर वो आपके लिए एक चैलेंज भी बन जाता है कि इस शख्स को माफ़ करना और कैसे माफ़ करना है, और आपका दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन खुदा की तरफ से ये एक इम्तिहान होता है कि आप ऐसे बंदे को अगर आप माफ़ कर देते हैं तो फिर आपके लिए जो है वो खुदा की तरफ से बरकत और तरक्की जो है उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बातें आज हुई और आज भी हमने माफ़ी के ताल्लुक से हमने सहाइफ में से भी देखा कि किस तरह से अंबिया का ये शेवा है कि वो माफ़ करते हैं और खुदावंद ताला की ये सिफत है और खुदावंद ताला चाहते हैं कि हमारे अंदर जो उसने अपनी सिफात रखी हैं उन सिफात को हम उन पर बहाल हों और यही जो है वो हमारे मुआशरे की तरक्की का सबब बनेगा। हमें माफ़ी जो है वो जंगों को ख़त्म कर सकती है, माफ़ी जो है वो ख़ानदानों को बहाल कर सकती है और माफ़ी जो है वो दोस्तियाँ टूटने से भी बचा सकती है। तो आज ही से अपना दिल बड़ा करें और आज ही से अगर किसी के साथ कोई रंजिश है, कोई भी तरह की कोई गलत फहमी है, तो उसको आज ही माफ़ करें, अपने दिल को साफ़ करें
اور ذہنی سکون اور قلبی سکون کے لیے اور روحانی ترقی کے لیے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ تو سامعین، اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خوب خیال رکھیے، معاف کیجیے اور برکت پائیے۔ خداوند تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ خدا حافظ۔ سن رہے تھے سلسلہ یوتھ ٹاک، اور جس طرح سے آج ہم نے گفتگو بھی کی ہے کہ جو طالب علم کامیاب ہوئے ہیں وہ اپنے فیلڈ کا چناؤ بڑے اچھے طریقے سے کریں، اور جو ناکام ہو گئے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، نہ ہی شرمندہ ہوں، نہ ہی کسی کی باتوں کو لے کر اپنے اوپر اتنا سوار کر لیں کہ آپ اپنے لیے بڑی پریشانی کھڑی کر لیں۔ آپ کن ذہن نہیں، آپ نالائق نہیں۔ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی روٹین کو سیٹ نہیں کیا۔ اپنے معمولات کو کنٹرول کریں، دیکھیں کہ کیا کیا وجوہات ہیں جو آپ کی توجہ کو ادھر ادھر کر دیتی ہیں۔ آپ کے جو اندر ایک چھپی صلاحیت ہے اس کو باہر لے کر آئیں۔ آپ اپنی روٹین سیٹ کر لیجئے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی میری بات یاد رکھیے گا، اس سے پہلے کہ آپ کسی مہنگی سی اکیڈمی کا چناؤ کریں، اس سے پہلے کہ آپ کسی بہت مہنگے ٹیوٹر سے ٹیوشن لینا شروع کریں، بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے اپنے آپ پر کام کریں، اپنی روٹین سیٹ کر لیں۔ نہ بھی ٹیوشن پڑھیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا پر چھوڑیے، خدا ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدائے قادر مطلق، میں تیری منت کرتا ہوں ہمارے سبھی لسنرز کو بڑی برکت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو کسی بھی طرح سے ناکام ہوئے ان کو کامیاب کر دے۔ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے لسنرز کے گھروں میں ہمیشہ سکون رہے، اطمینان رہے۔ جو کام کاج یہ کرتے ہیں ان کے کام کاج پر ہمیشہ تیری برکت رہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا جی۔ اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو۔ خدا حافظ۔